Good morning, everyone. I'm Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering. Also, I'm working in Training and Placement Department. So, today is 29th lecture, and we will discuss DC machine, Unit 2. So, a quick review on the syllabus, which includes Unit 2, main constructional feature of DC machine, types of armature winding, lap winding, and wave winding. Factors determining the induced EMF. I have covered this. I have covered this. Factors determining the electromagnetic torque has been already covered. Various type of DC generator. I have covered. Various type of DC generator. We have covered. Significance of back EMF and the relation between the back EMF and terminal voltage. Covered. Armature reaction is pending. Armature reaction is pending. Methods to improve the commutation has been done. Performance and characteristics of different type of DC motors has been covered. Speed control of DC motor has been covered till now. And need of starter, 3-point starter and the 4-point starter. This has to be complete. Electrical braking. Application of DC motor has been completed. Fault in DC machine, this is pending. Losses in DC machine pending. Determination of loss by the Swinburne test pending. Rating has been done. Rating and specification of DC machine has been done. So the remaining portion is, I hope, 1, 2, 3, 4 and 5 topics. So we have only left with the 5 topics. So let us start today's the next and go to the playlist and watch all videos. You must watch all videos whatever I have uploaded till now. Yes. So today we will discuss armature reaction. So this is the important topic and it includes 5 marks. 5 marks. It includes 5 marks. Okay. GNP, geometrical neutral plane. Geometrical neutral प्लेन कि यह प्लेन दो समीप के पोलों के मध्य के कोण को बराबर भागों में बांटता है. जीएनपी मीन्स जियोमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन. यह जो है दो समीप के जो पोल होंगे उनके मध्य को क्या करेगा, वो इक्वल डिवाइड करेगा. एंड सेकेंड वन इज MNP मीन्स मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन. मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन. मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन MNP को हाउ वी कैन डिफाइन, वह प्लेन जहां आर्मेचर के कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस नहीं होता. मीन्स आर्मेचर के कंडक्टर में आपका जब EMF इंड्यूस नहीं होगा, यानी EMF की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, दैट इज नोन एज MNP, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल. LTP फुल फॉर्म है आपका लीडिंग पोल ट्रिप.
को एलटीपी कहते हैं। यह जो है आपका मेन फील्ड पोल की कोर का पहला टर्मिनल और आर्मेचर के घूमने के डायरेक्शन में आर्मेचर के कंडक्टर में जो संपर्क में पहले जो आएगा कंडक्टर, उसको क्या कहेंगे, लीडिंग। मीन्स जो पहला कंडक्टर होगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग ट्रिप पोल। अब बात करते हैं टीपीटी, ट्रेलिंग पोल ट्रिप। मीन्स लास्ट वाला, ट्रेलिंग मीन्स लास्ट वाले को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, मेन फील्ड पोल को कोर का दूसरा टर्मिनल आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन में आर्मेचर के कंडक्टर के संपर्क के बाद में जो आएगा, मीन्स लास्ट वाले को हम बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। नाउ सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फिगर 27 में आपको कंपाउंड जनरेटर में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं जिसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में हम एक वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब बात आती है कि एग्जाम में पूछता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, इन पैरेलल विद आर्मेचर and in series with both armature and series winding. So answer will be armature and series winding दोनों के series में हम add करेंगे, that is known as compensating winding. I hope it is clear to all. Now see armature reaction. देखिए आपका स्टेटर फ्लक्स हो phi s, stator flux, and second one is phi r, that is rotor flux. If I'm talking about the armature reaction, so it is the reaction between the stator flux and the rotor flux. So armature reaction is the reaction between the stator flux and the rotor flux, दोनों के बीच का जो है that is known as armature reaction. जब आर्मेचर फील्ड पोल की मैग्नेटिक, कह रहा है जब आर्मेचर फील्ड की मैग्नेट को, यहाँ पे को रहा है को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है। जब आर्मेचर फील्ड पोल की मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा है कि घुमाते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस आर्मेचर जो है आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। फिर अगेन हमें क्या करना है, आर्मेचर के लोड से, जैसे ही देखिए यहाँ पे लोड से कनेक्ट कर देने पे जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी। मींस ओपन टर्मिनल है तो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, और सर्किट जो है हमारा जैसे ही क्लोज होगा तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो। जैसे सर्किट क्लोज का मतलब लोड कनेक्ट करेंगे आरएल, जैसे ही आरएल कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक करंट प्रवाहित होने लगेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे लोड करंट, दैट इज नोन एज लोड करंट। इसके बाद आर्मेचर स्वयं का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड मुख्य मैग्नेटिक फील्ड में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है आपका कि देखिए बीच में जो आर्मेचर रखा गया है, ठीक है, और ये जो है आपका मेन फ्लक्स है, यानी कि स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है
डिस्टरबेंस दोनों में क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। नाउ सी हियर आर्मेचर, देखिए आर्मेचर रिएक्शन में कुछ इफेक्ट्स होंगे। आपका जो पहला होगा दैट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, नॉर्थ में ऐसे हो रहा है, साउथ में ऐसे हो रहा है, ठीक। अब डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए कंबाइन अगर जो हम करते हैं एफ एफ एंड एफ ए को, ठीक है, एफ ए एंड एफ एफ। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है दैट इज द ट्रेलिंग पोल टिप and this one is the leading pole tip and this position is known as GNP and this one is the MNP. If I'm talking about figure 28 में क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपका मुख्य मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक समान रूप से फैला हुआ है। अगर जो कोई इफेक्ट नहीं है तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, यानी कि फाइव ईयर्स की आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ओके। तो जनरेटर की जियोमेट्रिकल न्यूट्रल यानी जीएनपी, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन और मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन एंड मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। जीएनपी और एमएनपी का जो है फिगर में दिखाया गया है कुछ ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन जीएनपी एंड एमएनपी लाइक दिस। अब बात करते हैं आर्मेचर कंडक्टर में स्थापित मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जो आर्मेचर में जो है, जो आपका यहाँ पे जो गिवन था आर्मेचर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये उत्तरी पोल के लिए पॉजिटिव दिखाया गया है एंड दक्षिणी के लिए आपका ये नॉर्थ के लिए पॉजिटिव एंड साउथ के लिए नेगेटिव दिखाया गया है। करंट के डायरेक्शन पे ये डिपेंड करेगा और लोड करंट पे भी निर्भर करेगा। तो मुख्य मैग्नेटिक फील्ड तथा आर्मेचर, देखिए मुख्य मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फाई एस तथा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर में यानी कि फाई आर के इफेक्ट को प्रदर्शित किया गया। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट जो है, ठीक है, ट्रेलिंग ट्रिप पोल के समीप में अधिक होता है, ट्रेलिंग के समीप में क्या होता है, अधिक होता है, और लीडिंग पोल ट्रिप के समीप में कमजोर हो जाता है। यानी जो फ्लक्स जो है, देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग पे क्या है आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है और लीडिंग पे क्या है आपका वीक हो जा रहा है। यह घटना मैग्नेटिक डिस्टरबेंस कहलाती है। मींस फ्लक्स का इंक्रीज होना एंड डिक्रीज होना दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डिस्टरबेंस। इस इफेक्ट के कारण आर्मेचर के घूमने का डायरेक्शन जो है आपका जो एम एन पी जी एन पी से 5 डिग्री, देखिए ये अगर जो हम स्टेट मानते हैं दैट इज जी एन पी, ठीक है, और ये जो है आपका एम एन पी, ये 5 डिग्री का दोनों में क्या हो रहा है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक। 28 में फ्लक्स एफ एफ और आर्मेचर का, देखिए एफ ए का जो रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर डायग्राम से दिखाएगा। एफ ए एंड एफ एफ का जो रिजल्टेंट है, ठीक। इस प्रकार के इफेक्ट को दूर करने के लिए ब्रशों को जीएनपी की स्थिति से एमएनपी की स्थिति में खिसका देते हैं। देखिए ब्रश का जो पोजीशन है एमएनपी से क्या करेंगे जीएनपी, जीएनपी से क्या करेंगे एमएनपी, यानी कि ये मूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ कहा जा रहा है इस इफेक्ट को दूर करने के लिए जीएनपी स्थिति में एमएनपी स्थिति को खिसका देते हैं। मीन्स जो डिस्टरबेंस की वजह से ये जो थीटा जो क्रिएट हो रहा था उसको पुनः हम लोग यहीं भेज देते हैं। इसे ब्रश होल्डर से जुड़े रॉकर आर्म की सहायता से करते हैं। इससे उत्पन्न ईएमएफ अधिकतम स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं और ब्रशों में स्पार्किंग का मान 0।
स्पार्किंग क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सी है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो मैंने बताया है कि आर्मेचर रिएक्शन की जब आप बात करिएगा तो आपका एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा और एक आएगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एंड डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्रॉस तो हम बता दिए कि एक क्या कर रहा था, फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा था और एक फ्लक्स को क्या कर रहा था, वीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीकर। ठीक है, तो लीडिंग पे आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा, सॉरी, वीक हो रहा था और ट्रेलिंग पे आपका वीक। और जो जी एन पी एंड एम एन पी, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, सी या डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक हो जाने पर आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइजिंग करने लगता है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर की बात हो रही है। लोड करंट का मान, यानी कि जैसे ही लोड से कनेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, आईएल। अब कह रहा है कि आईएल का मान जैसे ही आपका बढ़ता है, आईएल का मान अधिक हो जाने के कारण कह रहा है कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को, देखिए आर्मेचर फ्लक्स को बोल दे तो फाई आर, ठीक है, और मेन फ्लक्स को बोले हैं हम अब फाई एस। अब क्या है आपका, कह रहा है कि आर्मेचर फ्लक्स यानी फाई आर मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करने लगता है। ये जो है इसको क्या करने लगता है, डीमैग्नेटाइज करने लगता है। यह क्रिया लीडिंग पोल ट्रिप के समीप होता है। डीमैग्नेटाइजिंग जो होता है एलटीपी, लीडिंग ट्रिप पोल के समीप में ये होता है आपका। इस इफेक्ट के बाद जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान कम हो जाता है। जनरेटर है तो यानी कि जनरेटेड जो है आपका ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, काफी रिड्यूस हो जाता है इन दैट केस। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए छोटे जनरेटर्स में फील्ड वाइंडिंग की एम्पियर टर्न्स बढ़ा देते हैं। अब देखिए डीमैग्नेटाइजिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। छोटे जनरेटर्स में फील्ड वाइंडिंग में जो है एम्पियर टर्न की बात करेंगे तो यानी कि एमएमएफ को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। एन आई, एमएमएफ मतलब एन आई, इसको क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। और बड़े आकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में एक क्या करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज। देखिए इसमें आर्मेचर रिएक्शन के फॉल्ट्स इन द आर्मेचर रिएक्शन, हम टॉकिंग अबाउट द फॉल्ट्स। देखिए स्पार्किंग को हमें रिड्यूस करना था तो बता दिए कैसे करेंगे। अब आते हैं हम लोग फॉल्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में जो है आपका निम्नलिखित फॉल्ट होता है। अब कौन कौन से फॉल्ट होते हैं आइए देखते हैं। यह मेन फ्लक्स की डायरेक्शन को बिगाड़ देता है, मींस मेन फ्लक्स का डायरेक्शन ये नॉर्थ से लेकर के जो आपका साउथ की तरफ था, इसमें क्या करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है।
दूसरा पॉइंट है, यह मेन फील्ड के फ्लक्स को घटाता है, यानी कि ये जो फाइएस है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। यह कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को बढ़ा देता है, स्पार्किंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है, फ्लक्स को घटा दे रहा है, स्पार्किंग को आपका इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये क्या है, हमारा बैड इफेक्ट है। इससे उत्पन्न ईएमएफ की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, घट जाती है। ईएमएफ भी आपका रिड्यूस हो, ईएमएफ भी रिड्यूस हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।